Hello guys. We have in previous videos we have studied noun, numbers. In today's video we are going to study uses of noun. So these are these kind of questions you will see in the in your competitive exam papers. So we'll understand how to use these things. Okay. So let's start. First of all, we have in previous videos we have studied very well how the noun is used, how the numbers, singular number, plural number that we have used. Here we will see the first important use of noun is quantity and amount. Okay, so whenever there is quantity and amount, you can use for uncountable nouns. Okay, for example, those nouns that cannot be counted, only quality and amount word can be used before those nouns. ठीक है, मतलब जिन nouns को हम count नहीं कर सकते, uncountable nouns के आगे हम quality या amount word use कर सकते हैं. जैसे एग्जाम्पल इसमें आप देखेंगे, they have a large amount oblique quantity. So here we can use amount as well as quantity of sugar. Sugar cannot be counted. So that's why what we are doing here, we will use either amount or quantity of sugar. We will not use here numbers. So there are two things, quantity and amount can be used only for uncountable nouns. And if there are countable nouns, then number tells about numbers. That means if there are certain numbers of anything, that means countable nouns are there, then we will use number instead of क्वांटिटी और अमाउंट. जैसे इसमें हम देखेंगे राम हैज अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स, तो यहाँ पे हमारा जो नाउन जो है बुक्स इज काउंटेबल नाउन. तो क्योंकि बुक्स काउंटेबल नाउन है इसलिए हमने उसके आगे नंबर यूज किया. तो ये दो चीजें हमें याद रखनी है कि जब भी कोई अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके आगे हम या तो अमाउंट या क्वांटिटी वर्ड यूज करेंगे, और जब हमारा काउंटेबल नाउन होता है तो उसके आगे हम नंबर यूज कर सकते हैं. जैसे मैं कहूँ आई हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मोबाइल फोन्स. I have large, because mobile phones is a countable noun, so we will use numbers. And if I'll say like I have I must say I have a large amount of oil, so oil cannot be counted, it's not countable, uncountable noun, so we will use amount or quantity. Second thing is when there will be cause, so with cause there only of will be used, and with reason why word will be used. Okay, say for example what was the cause of, तो cause के साथ हमेशा क्या लगता है of. जब भी कोई cause हो तो उसके साथ हम of यूज करते हैं, और जब reason होता है कोई भी reason तो उसके साथ हम why का यूज करते हैं. तो जैसे इसमें हम पढ़ेंगे, जैसे हम पूछते हैं ना what was the cause of accident, तो हमने cause पूछा तो cause के साथ हमेशा of यूज किया जाता है. इन सेम वे जब भी रीजन की बात होती है, तो जैसे हमने इसमें लिखा दिस इज व्हाई ही डजंट लाइक इट, तो वो ये क्यों पसंद नहीं करता है, इस वजह से. तो ये क्या है, रीजन है. तो रीजन, या हम यहां ये भी लिख सकते थे कि दिस इज द रीजन. अगर हम यहां रीजन भी ऐड कर देंगे तो भी ये सही वर्ड होगा. तो रीजन के साथ हम क्या यूज करते हैं, व्हाई, और कॉज के साथ ऑफ यूज होता है. ये हमें याद रखने हैं. ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम जब एक्सरसाइज करेंगे नाउन की उसमें हमें ये काम आएंगे. थर्ड है डजन, 100,000. ये जितने भी जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के साथ में हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि कब एस जुड़ेगा, कब हम इसमें एस नहीं जोड़ेंगे. लाइक व्हेन वी हैव टू यूज डजन्स, व्हेन वी हैव टू यूज ओनली डजन, व्हेन वी कैन यूज थाउजेंड्स, व्हेन वी कैन नॉट यूज थाउजेंड्स. सो उसको क्लियर करते हैं हम यहाँ पे. डजन्स के साथ जब कोई डेफिनेट नंबर वर्ड होता है, जैसे हम कहें an 1 2 5 100 600, तब उस केस में हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन यूज करते हैं. ठीक है. और जैसे हम एग्जांपल देखें, 5 डजन एग्स हैव बीन बॉट, तो यहाँ डजन वर्ड जो है, ये डजन के आगे क्या लिखा है, एक डेफिनेट नंबर है 5. तो यहाँ हमने डजन के साथ एस नहीं लगाया है. यहाँ पे हमने क्या लगाया है, डजन के साथ, हमने एक्स के साथ तो एस लगाया बट डजन के साथ एस नहीं लगाया. लेकिन यदि अगर इफ डजन, 100,000 these words are having a word indefinite number, that means there are no definite number, then we will use s. Like in this case you will see dozens of eggs, hundreds of pirates. So what we have used here,
S with dozen and S with hundreds. So this is the difference when we can use S with these kind of words like thousands, hundreds, millions. So when there is a singular definite number in front with this word like dozen and millions, then we can only use without S, singular form of this. And if there is indefinite number, then we will use plural form of these words, these nouns. Okay, so this point is clear. Next is another and other. So when another is used with singular noun. Okay, if there is singular noun, then we will use another word like if here you will see, हम देखेंगे they live in another town. तो town यहाँ पे singular noun है, तो town के साथ हमने क्या यूज किया है, another, because town जो है वो singular noun है. और जब प्लूरल की बात आएगी तो प्लूरल के साथ हमेशा अदर यूज किया जाता है. आप इसको ऐसे नहीं कर सकते हैव यू गॉट अनदर लेटर्स. अगर हमें यहाँ पे लेटर्स लिखना है, अगर यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा प्लूरल नाउन है तो हम इसमें अदर यूज करेंगे. अगर हमारा सिंगुलर नाउन है तो हम अनदर यूज करेंगे. तो ये पॉइंट है जो आपको याद रखना है, ये अनदर अदर कैसे यूज होते हैं. इसके अलावा एक और ये पॉइंट है जिसमें हम देख रहे हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन ही होते हैं. इनको सिर्फ अनकाउंटेबल में ही यूज किया, और ये कभी प्लूरल में यूज नहीं होते. ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर में ही यूज किए जा सकते हैं. इनको आप प्लूरल में यूज नहीं कर सकते. जैसे मैं बात करूं एडवाइस, इंफॉर्मेशन, एडवाइसेस नहीं होता, इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता, एजुकेशंस नहीं हो सकता, मशीनरीज नहीं हो सकता, लगेजेस भी नहीं. ये सब ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं क्योंकि इनको आप काउंट नहीं कर सकते. तो ये प्लूरल में यूज नहीं होता. इनके साथ में कभी भी ए, एन और द का यूज नहीं होता. जब हम एक्सरसाइज करेंगे, जब हम जैसे हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिस तरह से आते हैं, आपके सेंटेंस में 5 ऑप्शंस होते हैं, उनमें से आपको एरर जो करेक्शन होता है, एरर्स ढूंढने होते हैं, वहां पे ये हमें बहुत काम आता है. वहां पर आपको इस तरह के ये सारी चीजें मिलेंगी जिनमें आपको सर्च करना होगा कि कौन से वर्ड में एरर है, कौन से सेंटेंस में एरर है. जो 5 पार्ट्स होते हैं उनमें से किसी एक में एरर होता है. तो ये सब आपको वहां पे आप काम आएंगे. जैसे वहां पे ये हो सकता है कि यहाँ पे जैसे शुगर के आगे उन्होंने नंबर लिख दिया, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ शुगर. तो दैट मीन्स आपको ये समझ में जाना चाहिए कि शुगर क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, उसके साथ नंबर वर्ड यूज नहीं हो सकता. तो वो आपका सही आंसर होगा. ठीक है. तो दोस्तों कुछ और यूजेस हैं ऐसे, जैसे हम यहाँ पर देखेंगे, जैसे जब कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स को हम नाउन के साथ यूज करते हैं तो उनका क्या इफेक्ट होता है, ये हमें याद रखना है. जैसे यहाँ हम देखेंगे 10 रुपीज़. तो नॉर्मली जब हम 10 रुपीज़ को यूज करते हैं तो इसको हम 10 रुपीज़ ही लिखते हैं. लेकिन जब 10 रुपीज़ नाउन के पहले आता है तो हम इसको 10 रुपीज़ में लिख के 10 रुपी लिखते हैं. सेम केस में जैसे 10 माइल्स या 10 किलोमीटर्स, तो इनके केस में भी अगर ये नाउन से पहले आते हैं, बिफोर नाउन, तो हम इनको इसमें ऐसे इसका प्लूरल यूज नहीं करते, इसका सिंगुलर यूज करते हैं. जैसे इस एग्जांपल में देखेंगे आई हैव अ 10 रुपी नोट. या नोट नाउन है और नोट से पहले क्या आया है, 10 रुपी, तो हमें 10 रुपीज में लिख के इसको 10 रुपी लिखेंगे. सिमिलर एग्जांपल यहाँ पे हम देखेंगे 10 रुपीज हैव बीन स्पेंट. तो यहाँ हमने क्या यूज किया है, 10 रुपीज. 10 रुपीज यूज किया है, 10 रुपी यूज नहीं किया. तो ये बेसिक डिफरेंस हमें याद रखना है कि जब ये 10 रुपीज जब हमारा नाउन से पहले यूज होगा तो हम इसको रुपीज में, इसका सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे, रुपी. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है, जिस कुछ वर्ड्स होते हैं ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग. ये ऐसे वर्ड्स होते हैं इनके साथ हमेशा सिंगुलर फॉर्म यूज किया जाता है. कौन कौन से वर्ड है, जैसे ईच है, एवरीवन है, एवरीबॉडी, एवरीथिंग. जैसे इनके साथ हमेशा कौन सा, सिंगुलर नाउन. जैसे हम इसमें देखेंगे ईच हाउस इज वाइट. तो हमने यहाँ पे कौन सा वर्ब भी कौन सा यूज किया है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब. हाउस के साथ हाउसेज नहीं लिखा हमने, क्या लिखा है, ईच हाउस इज. ठीक है. ईच हाउस इज वाइट. एवरीथिंग इज रेडी, सिंगुलर वर्ब है. ठीक है. लेकिन जब वन, एवरीवन, एवरीबॉडी, इन्हीं वर्ड्स के साथ अगर ऑफ जुड़ जाता है, अगर ये सारे वर्ड्स ऑफ के साथ यूज होते हैं, तो वहां पर हम नाउन को प्लूरल कर देते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखिए. ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीथिंग, जब ये अकेले आते हैं तो इनके साथ सिंगुलर नाउन यूज होता है. लेकिन अगर इनके साथ ऑफ आता है तो हम इसको प्लूरल में, जैसे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्या लिखा है, स्टूडेंट्स, मतलब प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन. हम यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन यूज नहीं करेंगे. जैसे हम ईच वन ऑफ एवरीबॉडी, जैसे एवरी वन ऑफ द पर्सन. ओके.
तो उसके साथ जब भी ईच, एवरीवन, एवरीबॉडी के साथ ऑफ आएगा तो हम उसके साथ प्लूरल नाउन ही यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स, प्रीमाइसेस, सीजर्स, ट्राउजर्स, ग्लव्स, पीपल। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज की जाती है। इनको गुड्स, प्रीमाइसेस, सीजर्स ये प्लूरल में ही यूज होते हैं, ये कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं होते। जैसे द गुड्स वर सेंट टू योर हाउस, तो गुड्स के साथ प्लूरल वर्ब ही यूज किया, तो इनको हमेशा हम, ये ऐसे नाउन से जिनको हमेशा प्लूरल में ही यूज किया जाता है, ठीक है। जैसे द पुलिस वर सेंट, तो यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज किया, पुलिस को प्लूरल माना। लेकिन जब इनके साथ, लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है, जब हम इनके साथ पेयर ऑफ वर्ड यूज कर देते हैं तो फिर यहाँ पे हम सिंगुलर नाउन यूज करते हैं। जैसे द पेयर ऑफ शूज इज ऑफ राम, तो पेयर ऑफ शूज को हमने क्या मान लिया, सिंगुलर। ये पूरा पेयर ऑफ शूज सिंगुलर हो गया, इसलिए हमने सिंगुलर वर्ड यूज की है, सिंगुलर वर्ड। द पेयर ऑफ शूज इज ऑफ राम। सेम वे द पेयर ऑफ ग्लव्स, तो द पेयर ऑफ ग्लव्स को हमने सिंगुलर नाउन। बिलोंग्स हमने ऐसे एस लगाया क्योंकि हमने इसको सिंगुलर यूज किया है, टू हिम। लेकिन जब हम इनको बिना पेयर के यूज करते हैं तो ये वाला द गुड्स वर सेंट, सेम वे हिज शूज वर क्लीन, यहाँ पे हमने शूज को यूज किया लेकिन यहाँ पे हमने प्लूरल वर्ब यूज किया, हिज शूज वर क्लीन। इन सेम वे हिज ट्राउजर्स वर टॉर्न, उसके ट्राउजर जो थे वो फटे हुए थे। तो इस तरह से हमें ये सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं नाउन के यूजेस के, ये हमें याद रखने हैं और इन्हें हम हमेशा जब हम कॉमन एरर्स यूज आते हैं जो बैंक के एग्जाम में, एसएससी में, उसमें ये हमें काम आते हैं। तो चलो अब हम कुछ कॉमन एरर्स का फाइंड आउट करके देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। तो दोस्तों अभी हमने नाउन पढ़ा, नाउन के सारे इंपॉर्टेंट यूजेस पढ़े। अब हम एक एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। इससे आपको कुछ कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि हमने जो पढ़ा है वो हमें, उससे हमें कितना कुछ मिला है, क्या हमने सीखा है, व्हाट वी हैव लर्नड अबाउट ऑफ दैट। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेंटेंस। तो आपको मेरे साथ साथ करना है और मुझे बताना है आंसर्स, ठीक है। हम पहला सेंटेंस पढ़ेंगे, ये कॉमन एरर्स है जो नॉर्मली बैंक्स में, एसएससी में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपको 5 पॉइंट्स दिए रहते हैं, एक सेंटेंस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा नो एरर। इसमें हमें ये पता करना होता है कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है और वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस अगर आप पढ़ेंगे, जया वेंट, ये पहला हो गया पार्ट, टू हर फ्रेंड्स हाउस, ये दूसरा पार्ट हो गया, एंड गेव हर टू, ये तीसरा पार्ट हो गया, 10 रुपीज नोट्स, और ये चौथा पार्ट हो गया, और नो एरर। तो इसमें बताइए कौन से पार्ट में आपको एरर दिख रहा है। जया वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस एंड गेव हर 10 रुपीज नोट्स। तो जैसा हमने पढ़ा, बताइए, तो जैसा हमने पढ़ा था कि जब ये जो 10 रुपीज हम यूज करते हैं, जब इससे पहले, ये जब इस नाउन से पहले यूज होता है, नोट क्या है, नाउन है, नाउन से पहले जब यूज होता है तो हम रुपीज की जगह इसमें हम सिर्फ रुपी लिखते हैं। तो हमारा एरर जो है वो इस सेंटेंस में होगा। दैट मीन्स हमारा जो आंसर होगा वो नंबर 4 होगा। जैसा हमने पढ़ा था अभी कि जब भी 10 रुपीज, 5 माइल्स, 10 किलोमीटर्स, ये अगर नाउन से पहले यूज होते हैं तो हम इनके साथ इनकी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करते हैं, इनका हम सिंगुलर फॉर्म यूज करते हैं। तो रुपीज की जगह क्या हो जाएगा, 10 रुपी नोट। नेक्स्ट में देखेंगे हम, शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद अ सीजर्स, नो एरर। अब इसमें हमारे 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। तो आपको कौन से पार्ट में एरर दिख रहा है इसमें, बताइए। शी डज नॉट कट पेपर विद ब्लेड बट विद अ सीजर्स, समझ में आया? जी हाँ, हमारा जो एरर है वो सीजर्स में है, क्योंकि सीजर्स जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। सीजर्स से पहले कभी भी ए का यूज नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो नंबर 4 होगा, बिकॉज सीजर्स के साथ ए एन का यूज नहीं किया जा सकता। सीजर्स इज ऑलवेज अ प्लूरल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम नंबर सी, 1000 of rupees were spent by him, no error. Part 1, 1000 of rupees, 2 were, 3 spent, 4 by him, 5 no error. तो बताइए इसमें आपको कहाँ लग रहा है, क्या एरर हो सकता है? जी हाँ, हमारा एरर जो है वो पहले पार्ट में है, क्योंकि यहाँ पर 1000 की जगह क्या होगा,
थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, क्योंकि यहाँ पे आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जब मैं आपको यूसेज बता रहा था नाउन के, तब मैंने आपको बताया कि थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, डजन्स, ये अगर इनके साथ कोई डेफिनेट नंबर जब होता है तब हम इसको सिंगुलर फॉर्म में यूज करते हैं। जैसे हम अगर कहते हैं 5000 तो फिर 5 एक डेफिनेट नंबर होता, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इंडेफिनिट नाउन है इसलिए हम इसका मल्टीपल फॉर्म तो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज हो जाएगा, प्लूरल फॉर्म, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज वर स्पेंट बाय हिम। ठीक है, तो ये हमारा इसमें हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ, थाउजेंड्स ऑफ रुपीज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट डी पढ़ेंगे। डी में हम देखेंगे कहां पर एरर है हमारा। द क्रूज ऑफ द बोट वर नॉट ड्राउन, नो एरर। बताइए इसमें आपको कहां एरर दिख रहा है, वेयर यू कैन फाइंड द एरर। सो द एरर इज इन फर्स्ट सेंटेंस, द क्रूज, बिकॉज क्रू जो है ये अपने आप में प्लूरल होता है। क्रू मीन्स होता है जो सदस्य होते हैं किसी भी जहाज के या प्लेन के, जो सदस्य होते हैं सारे मिलके वो क्रू बनाते हैं, तो ये कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन है तो क्रू अपने आप में प्लूरल होता है। ठीक है, इसलिए इसका एस या ईएस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो ये हमारा इसमें एरर हमारा कौन से पार्ट में है, 1 में, तो ये हमारा आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नंबर ई। देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी। अब इसमें आप बताइए आपको समझ में आ रहा है। देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स इन आवर कॉलोनी, नो एरर। क्या इसके फर्स्ट पार्ट में एरर है, देयर हैव बीन, नहीं, जी हाँ सही पकड़ा आपने, 10 वुमेन। जब मैंने आपको पढ़ाया था, जब आप अगर मेरा पहला वीडियो देखेंगे उसमें हमने पढ़ा था कि जब कोई कंपाउंड नाउन होता है, वुमेन डॉक्टर्स, तो हम कंपाउंड नाउन में, और जहाँ पर वुमेन वर्ड का यूज होता है तो यहाँ पर 2 है, तो इसलिए हम इसमें इसको दोनों पार्ट को हम प्लूरल बना देते हैं। तो यहाँ पे वुमेन की जगह वीमेन हो जाएगा, 10 वीमेन डॉक्टर्स। ठीक है, तो हमारा इसका आंसर होगा 2, क्योंकि इसमें हमारे पार्ट 2 में एरर है। ठीक है, नेक्स्ट, आर रीडिंग दिस नॉवल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल ऑफ इंडिया, नो एरर। अब इसमें आपको देखना है कि हमारे किस पार्ट में, सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये समझना होगा, क्योंकि यही पैटर्न होता है मैक्सिमम जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें जो कॉमन एरर्स होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। Some boys are reading this novel because this is one of the most important novel। अभी हमने पढ़ा था कि जब भी one of, one, each, everyone के साथ अगर of का यूज होता है तो उसके साथ हम क्या करते हैं, प्लूरल फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पे नॉवल की जगह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि नॉवल, ईच, एवरीवन, और इनके साथ अगर हम सिंपली नाउन यूज करते हैं तो उसमें हमें सिंगुलर फॉर्म यूज होती है, जैसे एवरीथिंग इज रेडी, एवरीवन इज गोइंग टू मार्केट। ओके, बट अगर यहाँ पे हम देखें, लेकिन जब ऑफ का यूज होता है इनके साथ में, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉवल, तो ऑफ जब लग जाता है तो हम इसके साथ में प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, नंबर जी। डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव the lives of the accident victims, accident victims। अब इसमें हमें find out करना है, now we have to find out which part of this sentence is having error, and that is the most important thing we will have to see। Doctors did, everything seems right, their best to save, here also everything seems right। Next, the lives of the, so here we find out the error, lives, there is never life, whenever there is a word ends with f, fe, what we do, हम क्या करते हैं इसको चेंज करने के लिए, हम इसको प्लूरल बनाने के लिए ves, fe को या f को ves से चेंज रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ लाइफ की जगह क्या होगा, द लाइव्स ऑफ द एक्सीडेंट विक्टिम्स, क्योंकि यहाँ पे ये प्लूरल है नाउन, एक्सीडेंट विक्टिम्स क्या है, प्लूरल है, तो लाइफ जो वर्ड है ये नाउन, ये भी क्या चेंज हो जाएगा, लाइव्स हो जाएगा। ठीक है, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में बदल जाएगा। तो ये हमारा एरर नंबर 3 में हो गया। नेक्स्ट, लास्ट हम देखते हैं, ऑन हिज वे टू द फील्ड गोलू सॉ अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, नो एरर। इसमें इजी है, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कहां पर एरर है, बता दीजिए।
एरर है नंबर 4 में, बिकॉज शीप्स जो है वो प्लूरल नहीं, शीप अपने आप में ही एक प्लूरल वर्ब होता है, ठीक है। शीप का मतलब, शीप का कभी भी एस लगा के प्लूरल फॉर्म नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। ये मैंने कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, एक पूरी एक्सरसाइज है मेरे पास, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको उसमें एरर्स ढूंढिए, चेक करके मुझे बताइए, और अगर कुछ भी आपको इसमें कंफ्यूजन लगे नाउन में तो आप प्लीज़ मुझसे कभी भी शेयर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, थैंक्स अ लॉट।